Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MTCAT, and today I'm going to discuss chemiosmosis. So let's move on. Now dear students, the chemiosmosis. So what is chemiosmosis? So both in both non-cyclic and cyclic phosphorylation the mechanism of ATP synthesis is chemiosmosis. The process that uses membranes to couple redox reactions. To ATP production. That very process is known as chemiosmosis. मतलब कि एक ऐसा अमल, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेम्ब्रेन्स को, हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में chemiosmosis की ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन. तो यहाँ पर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स को इस्तेमाल किया जाएगा. दिस विल बी यूज्ड टू कपल का मतलब होता है दो चीज़ों को लेकर के चलना. मतलब कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, दो तरह के रिएक्शंस हैं जो कि लाइट रिएक्शन में हो रहे हैं. उन दोनों को एट अ टाइम लेकर के चलना और उससे एटीपी बनवा लेना, दैट वेरी प्रोसेस इज नोन एज chemiosmosis. डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू chemiosmosis. याद रखिएगा, chemiosmosis involves तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसमें. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. नंबर 1, इलेक्ट्रॉन फ्लो. नंबर 2, pumping of protons. And number 3 is the formation of ATP. ये तीन चीजें होंगी chemiosmosis में. And now we are going to see how. Clear? इसके साथ कोई भी एक चौथा स्टेप आपसे मिला के irrelevant आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, that which one of the following is not involved during chemiosmosis. ये तीन दे करके साथ में चौथा कोई भी ऐड किया जा सकता है. Clear? Like carbon dioxide fixation. ठीक है, like this. चलें, अब देखते हैं इसको समझ पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. दिस इज अ प्लांट
having roots, stem, and leaves. Here is a beautiful flower. तो हमने क्या पढ़ा कि एक प्लांट में द मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज जी, क्या चीज़ है? दैट इज द लीफ. दैट इज लीफ, मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. लीफ में क्या है? देयर आर द मेसोफिल सेल्स. दीज आर द मेसोफिल सेल्स. और इस तरह से भी मौजूद है. आपने ट्रांसफर से इसका लॉन्गिट्यूडल सेक्शन में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कई दफ़ा से. ये लीफ का ट्रांसफर सेक्शन, ये ऊपर अपर एपिडर्मिस और ये नीचे मेसोफिल लेयर. इसके अंदर क्या मौजूद है? ये दिस आर द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. सो मेसोफिल, और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर देयर आर 20 to 100. एक मेसोफिल सेल के अंदर देयर आर 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट. सो दिस इज the chloroplast. So this is our chloroplast. और इसके अंदर मौजूद हैं the grana और grana which are interconnected by intergrana. और इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकाल करके देखते हैं कि ये क्या मौजूद है. We are going from general to specific. Clear? So, if you look at in the electron microscope, so this is a thylakoid, another thylakoid, another thylakoid, is there. और इसके अंदर आपको वो बहुत सारे फ्लूइड फील्ड अंदर से नज़र आएंगी. ये बाहर स्ट्रोमा, दिस इज स्ट्रोमा. ठीक है, ये स्ट्रोमा है. और ये अंदर थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस. इसके अंदर जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, व्हाट आर दे? So these are the protons. These are protons. And this one is the thylakoid interior space. जिसका दूसरा नाम, जी डियर स्टूडेंट्स, what is its second name? It is called lumen. और ये जो आपको डबल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये वाली, this is the thylakoid membrane. It's a thylakoid membrane. चलें, अब इस thylakoid membrane को हम, इस एक पूरे क्लोरोप्लास्ट को हम यहाँ पर एक्सपोज करने लगे हैं. So in order to see what it has got now, thylakoid membrane को, just the thylakoid membrane. Sorry. So here we go. So membrane है, this is the lipid bilayer. Lipid bilayer, and here we have got our photosystem 1. And then there is plastoquinone. This is plastoquinone. Then we have got after plastoquinone, there is the cytochrome complex.
here is the cytochrome complex. And after cytochrome complex, there is plastocyanin. And after plastocyanin, let me finish this. There is photosystem 2, photosystem 1. This is our photosystem 1. Then there is ferredoxin. Then there is NADP reductase. This is NADP reductase. And finally, let me finish this. And in the end, there is ATP synthase. This is ATP synthase. And I'm going to finish this now, the thylakoid membrane. So these are the phospholipids. जी तो dear students, sorry. So ये thylakoid membrane. This is the thylakoid membrane. ये जो डबल मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये जो डबल लेयर नज़र आ रही है, लिपिड बाइलेयर. दिस इज thylakoid सिंगल मेम्ब्रेन. ये डबल मेम्ब्रेन नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन है, बट इट इज़ अ लिपिड बाइलेयर. ये दो लेयर्स. और इसके अंदर ये क्या मौजूद है? दिस इज thylakoid इंटीरियर स्पेस. याद रखिएगा, thylakoid इंटीरियर स्पेस और लुमेन. और इसके बाहर ये क्या मौजूद है? स्ट्रोमा. सो हेयर इज स्ट्रोमा. ठीक है, तो ये बाहर सारा स्ट्रोमा, ये thylakoid की एक मेम्ब्रेन, और उसके अंदर ये thylakoid इंटीरियर स्पेस. ये एक thylakoid को हमने एक्सपोज किया सिर्फ इतने को. सो हेयर वी गो नाउ. दिस इज आवर फोटोसिस्टम 2. ठीक है, एंड दिस इज साइटोक्रोम बी. साइटोक्रोम, दिस इज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. आई टोल्ड यू कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स दो तरह की प्रोटीन से बना हुआ है. इट कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F. ये दो प्रोटीन्स हैं. इसको MCQs के लिए मार्क कर ले प्लीज़. सो ये कॉम्प्लेक्स है. और फिर उसके बाद हियर इज द फोटोसिस्टम 1. क्लियर? एंड दिस इज फेरिडॉक्सिन, द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, एंड दिस इज
NADP reductase, the enzyme. And this one, a globe-like structure, फानुस की तरह का. This is ATP synthase. फिर तो होगा क्या भाई, यहाँ पर पड़ रही है सूरज की रोशनी फोटोसिस्टम 1 पे, तो यहाँ पर मौजूद वाटर को स्प्लिट किया जाएगा. H2O will be splitted by this using the photosystem into 2 hydrogen ions, 2 electrons and half O2. Is that clear? फिर यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा और फिर इसको पास करेगा टू द प्लास्टोक्विनोन. Plastocyanone, it will pass these electrons to the cytochrome complex. Cytochrome complex pass these electrons to the plastocyanin. Plastocyanin will pass these electrons to the photosystem 1. Photosystem 1 will pass these electrons to the, यहाँ पर भी photosynthesis हो रही है, यहाँ पर भी लाइट पड़ रही है, यहाँ पर भी उसके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एक्साइट हुए. ये जिनसे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, इन्होंने फिलअप कर दिया इसके गैप को. 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल को फिल किया. यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं निकल कर फेरिडॉक्सिन के पास गए. फ्रॉम फेरिडॉक्सिन दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन टू द NADP रिडक्टेज. और NADP रिडक्टेज क्या करता है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है और क्या कर लेता है, इट मेक्स, इट कन्वर्ट्स NADP प्लस these हाइड्रोजन आयंस, these electrons into NADPH. So one of the product of the light reaction. अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो साइटोक्रोम है, ना सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन का वो कैरियर है, इसको ट्रांसपोर्टर है, इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या रोल प्ले करता है, इट एक्ट्स एज अ प्रोटॉन पंप. ठीक है, तो याद रखिएगा साइटोक्रोम, इट इज़ अ प्रोटॉन पंप. ये प्रोटॉन पंप के तौर पर भी एक्ट कर रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है उसको. तो जैसे ही यहाँ से लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से प्लास्टोक्विनोन से यहाँ पर पहुँचे, मतलब कि इसने ऑक्सीडाइज करवाया प्लास्टोक्विनोन को, खुद क्या हो गया, रिड्यूस. तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ से फ्लो करते हुए आगे मूव करेंगे, तो ये सेंसिटाइज करेगा इस प्रोटॉन पंप को कि वो क्या करेंगे, यहाँ पर मौजूद जो हाइड्रोजन आयंस हैं स्ट्रोमा के अंदर, कहाँ पर, स्ट्रोमा के अंदर, इनको पंप करेगा इनटू द लुमेन, इनटू द थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस. यहाँ पर इनको पंप करेगा. इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती रहेगी. थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस में, जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर बहुत सारे आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, सारे प्रोटॉन्स हैं, हाइड्रोजन आयंस हैं. बाहर स्ट्रोमा में कम नज़र आ रहे हैं, अंदर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. तो अंदर यानी कि थाइलाकॉइड लुमेन जो है, थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को हाई रखा जाएगा, हाई. ठीक है, हाई लेवल पे रखा जाएगा. कौन कर, इसकी में हेल्प कौन करवा रहा है, द प्रोटॉन पंप, द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. ये अंदर उसको स्ट्रोमा से पकड़ पकड़ कर इनको अंदर की तरफ भेजता चला जाएगा और अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. जैसे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर एक प्रोटीन है दैट इज नोन एज ATP सिंथेस. ये क्या करेगा, इट विल मूव दीज हाइड्रोजन आयंस अक्रॉस दिस प्रोटीन. इसको बाहर की तरफ वापस भेज देंगे स्ट्रोमा में, यहाँ से बाहर की तरफ भेज देंगे. और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट वेरी एनर्जी विल बी यूज्ड टू कन्वर्ट ADP plus phosphate into ATP.
तो ये मुसलसल ऐसे ही करता रहेगा। अगर यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन लुमन के अंदर ज़्यादा रहेगी तो वहाँ से बाहर की तरफ यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन लो है, तो इस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनके जो पोर्स होते हैं इस एंजाइम के, इस प्रोटीन के, वहाँ से इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो उसके दो काम यहाँ पर, एक तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इसको मूव करवाना, यानी लुमन से जो स्ट्रोमा है उसके अंदर प्रोटॉन्स को मूव करवाना, और दूसरा यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करवाना सॉरी, जिसमें एडीपी को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू एटीपी। क्लियर? सो दैट इज व्हाट गोइंग ऑन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शंस। इस तरह से लाइट रिएक्शन में एक तो NADPH भी बन गया विच हैज़ गॉट द रिड्यूसिंग पावर, इसकी रिड्यूसिंग पावर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ। और यहाँ पर जो ATP बन रहा है इसकी इट हैज़ गॉट द assimilating पावर, assimilating पावर, क्लियर, ATP की। तो अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कि अंदर से लो हो जाए, बाहर हाई हो जाए, तो फिर ATP की सिंथेसिस रुक सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि प्रोटॉन पंप यानी कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो कि प्रोटॉन पंप के तौर पर एक्ट कर रहा है, ये मुसलसल जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास करेंगे ये सेंसिटाइज हो जाएगा, ये फौरी तौर पर पंप काम करना शुरू कर देगा, यहाँ से स्ट्रोमा से पकड़ कर अंदर लुमन में फेंकेगा, और ATP सिंथेज इसके ऑपोजिट काम करेगा, वो लुमन से पकड़ कर अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उन प्रोटॉन्स को बाहर स्ट्रोमा में फेंकेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम कर रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज हाउ, अब जरा इस पे गौर करें, द प्रोसेस दैट यूजेस मेम्ब्रेन्स, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, यूज किया किसको, टू कपल रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्विनियन के पास पहुंचे तो यहां की क्लोरोफिल क्या होगी, ऑक्सीडाइज, और ये क्या हो गया, रिड्यूस। अब इसको रिड्यूस किसने किया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंचे, ये ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस, फिर ये ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस, फिर ये ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस, इस तरह से बात समझ आ रही है। सो दिस इज हाउ द रिडॉक्स रिएक्शंस यहां पर कपल किए जा रहे हैं, किस बाय यूजिंग द मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, टू जनरेट ATP, टू जनरेट दिस ATP। तो केमियोसिस में इन्वॉल्व क्या क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन्वॉल्व हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। दूसरा काम पंपिंग ऑफ प्रोटॉन हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो कर रहे हैं अलॉन्ग द दीज कैरियर प्रोटीन्स। पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन कहां पर हो रही है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट MCQ है, पंप कहां पे होंगे, फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन, फ्रॉम स्ट्रोमा टू द ल्यूमन। करवा कौन रहा है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, कितनी प्रोटीन्स है उसमें, दो, कौन कौन सी, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। क्लियर, दो काम हो गए, और तीसरा काम द फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो ये तीन काम होंगे, सो दैट विल बी टर्म्ड एज केमियोस्मोसिस। जी तो डियर स्टूडेंट्स, hopefully today's lecture has been clear, or hopefully there is no question, and if there is any question related to today's lecture, you can put your question in the comments box and our subject specialist will answer you soon. So take care of yourself until next lecture. Allah Hafiz.